हाँ Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग।
Can you hear me? Yes, sir. So today, I will find first one maximum and minimum value, of one trigonometric expression. That is very important question. I will derive it first. Right, this one. Maximum and minimum value of a sin theta plus b cos theta. A and b are some real number, okay? So when the pattern will be like this, so इसका maximum value क्या होगा, minimum value क्या होगा, ठीक है? Understood? Sir, of this entire expression, Yes, पूरा entire expression इसका maximum and minimum value क्या है देखो. तो पहले मैं इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डिराइव कर लेता हूँ. मतलब देखो ये किस फॉर्म में आएगा, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एक्चुअली इस फॉर्म में आता है, ये sin थीटा प्लस b cos theta. A and b are some real values. This value will be always lies between minus root over a square plus b square and plus root over a square plus b square. देखो मतलब इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस दिस एंड लेस देन इक्वल टू दिस. अगर मान लो मैं एक बात बोलता हूँ, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन थीटा का? +1. +1. Yes, this is the right side last boundary 1. And what is the minimum value of sin theta? -1. -1. सेम थिंग, इसका भी मिनिमम वैल्यू है ये, मैक्सिमम वैल्यू है ये. नाउ ये कैसे आया है देखो, मैं इसको डिराइव करके दिखाता हूँ. तो यहाँ पे हम लोग पहले एक चीज हम लोग सपोज कर लेते, लेट a इक्वल टू, इसको एक फॉर्मूला बनाएंगे, मतलब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला इस फॉर्म में लाएंगे. साइन a प्लस बी, याद है ना? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस बी? Sin A cos B plus cos A sin B. Good. Sin A cos B plus Abhinav, are you there? Yes, sir. Ayush? Ayush? Devarshi? Yes, sir. Ayush is not there or what? Ayush join করেছিল no? Oh, sir, आपको left में है. चिरंजीव भाई साहब? Yes, sir. लेट्स सी, इसको हम लोग इस फॉर्म में लाएंगे, साइन a प्लस बी फॉर्म में लाएंगे. तो इसको लाने के लिए यहाँ पे हम लोग a को नाम देता हूँ, लेट a इक्वल टू सपोज cos phi, r cos phi, r into cos phi, and b equal to suppose r sin phi. Phi is another one angle. तो r क्या है, phi क्या है, क्या फाइंड हो जाएगा ये देखो. तो यहाँ पे अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो जाएगा. a means r cos phi, then sin theta, plus b means r sin phi, then cos theta. Understood? Now, if I take this r common, this can be write as like sin theta cos phi plus cos theta sin phi. Now,
Can I write? Yes. Understood? Yes, sir. Yes, Now sir. it will become now r into देखो ये sin a cos b cos a sin b मतलब ये sin थीटा प्लस फाइव हो गया. ओके ये पूरा एक्सप्रेशन को मैं ऐसे बना लिया. एक्चुअली यहाँ पे आर किया है देखो, अगर इन दोनों को स्क्वायर करके मैं प्लस कर दूंगा, हाँ इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करके प्लस कर दूंगा बोथ साइड, तो यहाँ से आर निकल जाएगा. देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. इस तरफ भी स्क्वायर करो, दोनों स्क्वायर करो, देन आफ्टर दैट एडिंग देम, so it will become a square plus b square, and this side r square cos square phi plus r square sin square phi ना. तो r square is common, cos square phi plus sin square phi is what? 1. 1. So r square equal to a square plus b square. What is r then? What is r? Root over a square plus b a square. square plus b square. Now देखो ये एक्सप्रेशन को हम लोग इसमें डाल दिया ये फॉर्म में ना. तो साइन थीटा प्लस फाई का ये कुछ भी लिखो, थीटा प्लस फाई कुछ भी एंगल लिखो, अल्टीमेटली ये क्या हो गया? साइन लाइक एक्स ना. तो साइन का वैल्यू किसके अंदर है? -1 टू -1 to +1. -1 टू +1. तो अल्टीमेट इसके अंदर होगा. इसका लिस्ट वैल्यू क्या है? इसका लिस्ट वैल्यू -1 ना. साइन थीटा Yes, प्लस फाई sir. का लिस्ट वैल्यू क्या है? -1. -1. What is the highest value of sin theta plus phi? 1. +1. +1. So मतलब तुम लोग बोल सकते हो इसका a cos theta, a sin theta plus b cos theta, इसका लिस्ट वैल्यू होगा -r. Yes. Yes or not? Yes, sir. Minus. But it is -1. List value of this is -1. So this equal to what? -r. And what is the highest value of this? 1 plus 1 +1. So it will be what? less than equal to 1. So means इसका वैल्यू -r and +r के बीच में है. Yes, sir. So what is r here? सर इस पार्ट को एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये इक्वल टू ये है ना. यस This सर. means equal to this. तो इसका लिस्ट वैल्यू क्या है? इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा वही होगा इसका लिस्ट वैल्यू. यस सर. तो इसका लिस्ट वैल्यू है -1, तो इसका भी लिस्ट वैल्यू हो गया -r. इसका Okay, हाईएस्ट sir. वैल्यू जितना होगा वही होगा इसका हाईएस्ट वैल्यू. सो हाईएस्ट वैल्यू इज 1, तो इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गया? r into 1r. So now original value of r is what? So you just have to remember this formula. This is the least value and this is what? Greatest value. इसका लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन होता है. देखो मैं एक दो एप्लीकेशन दिखा देता हूँ. ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं. अंडरस्टूड ना? यस सर. Sir, बोलो. sir, A equal to R cos phi और B equal to R sin phi क्यों लिया है? एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे देखो, एक्चुअली सर्कल में क्या होता है ना, देखो इसको एक फॉर्मूला बना लिया एंड वो कहाँ से आता है? देखो अगर सर्कल में हम लोग सर्कल बाद में बनाते हैं. देखो ये, हाँ सपोज ये एक लाइन लिखा मैंने, ठीक है. इसको अगर हम लोग एक, दिस इज द रेडियस ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, इट इज व्हाट? सपोज r. Am I clear? Yes, yes, sir. यस सर. तो देखो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज सपोज एंगल इज व्हाट? फाई. सपोज फाई, यहाँ पे मैंने फाई लिया ना.
isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, हाँ, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है क्या होगा, x, y ना, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये होगा x और ये होगा क्या, Y. दिस इज x एंड दिस इज y। अगर यहाँ पे हम लोग त्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं, देखो ये बेस है ना, Yes, sir. Yes, sir. ये बेस है और दैट इज रेडियस। तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन किधर क्या है, Cos theta. Cos theta. cos is b by h। तो यहाँ पे फाई लिया तो cos फाई क्या होगा, b by h, x by what, r। तो x इक्वल टू व्हाट, r cos फाई। एंड देन अगर y फाइंड करने जाओगे, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, sin फाई ना, Yes. Yes, sir. y by r। सो व्हाट इज y, r sin फाई। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। हाँ, दिस इज कॉल्ड आल्सो पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा हम लोगों को। तो ये x इक्वल टू सब इस सर्कल में किसी भी पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट लिखोगे, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम, सॉरी पोलर फॉर्म। इस ये सर्कल का इक्वेशन है, देखो ये एक सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अगर ये x एंड y यहाँ पे डाल दोगे तो देखो तुमको राइट हैंड साइड ही मिलेगा, x r cos फाई डालो, y r sin फाई डालो, यहाँ पे तुमको ही r स्क्वायर ही मिलेगा। सो दैट इज ये सर्कल में कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स आर cos फाई, वाई आर sin फाई। तो इसको हम लोग वही पोलर फॉर्म से लेके आया वो कॉन्सेप्ट, ए के जगह में हम लोग आर cos फाई डाला, बी के जगह में आर sin फाई डाला, तब जाके ये फॉर्मूला बन गया। अंडरस्टूड? Yes, sir. रुको एक सेकंड, कौन चेक उसमें क्या हो गया। सर कैन यू प्लीज फॉरवर्ड द लिंक ऑफ टुडेस क्लास। Sneha is there or not? Sneha, are you there? Sneha? Yes, what problem? What happened, Sneha? Can you hear me? देखो, so this is what, इसको एक फॉर्म में डाल दिया। हाँ, तब ये जब यहाँ पे लेट करते हो तो ये देखो फॉर्मूला में आ गया, साइन एक्स ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई। तो साइन में क्यों, कॉस में भी बना सकता था, साइन में क्यों बना है, क्योंकि साइन का मुझे हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू मालूम है। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ साइन? Minus. -1. -1. -1। तो इसमें लोएस्ट वैल्यू डालोगे तो इसका लोएस्ट वैल्यू मिल गया -r, एंड इसका हाईएस्ट वैल्यू डालोगे +1 तो इसका हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगा। Am I clear? Yes, sir. Sir, So, yes, tell. सर मतलब a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मतलब ये सर्कल के बारे में पूछ रहा है। ये एक एक्सप्रेशन है, देखो ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ऐसा फॉर्म में जब भी आएगा उसका ये तुम्हारा लिस्ट वैल्यू, ये हाईएस्ट वैल्यू, वो डिराइव करने के लिए हम लोग ये सपोज कर लिया। समझ में आया?
सर हम दूसरा नहीं ले सकते? नहीं, दूसरा लेने से देखो ये फॉर्म नहीं आएगा यहाँ पे। अंडरस्टूड? अगर मान लो 10 लेते हो, सेक लेते हो, तो ये साइन कॉस कॉस साइन नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा साइन है ना, यस सर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया को आर कॉस फाई एंड बी इक्वल टू आर साइन फाई। तो इसके साथ कॉस आ गया, उसके साथ साइन आ गया, तो साइन कॉस प्लस कॉस साइन क्या होता है? साइन थीटा प्लस फाई। अंडरस्टूड? यस सर। क्योंकि देखो अगर कॉस लोगे, हाँ दोनों कॉस लोगे, तो इसमें साइन कॉस होगा, उसमें कॉस कॉस होगा, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। बनेगा? No, sir. नो सर। नो। अगर दोनों sir. साइन लोगे तब भी नहीं होगा, ये साइन साइन हो जाएगा, वो साइन कॉस होगा, नो फॉर्मूला। तो इसलिए ये कॉस वो साइन ले लिया। सो एंड व्हाट इज दिस आर एंड फाई? फाई भी ऐसे फाइंड कर सकते हो, देखो आर फाइंड हो गया, आर इज व्हाट? a square plus b square ना। and now if you want to find phi from here, phi is the angle, मैंने दिखाई दिया था वो एंगल कैसे होता है, देखो। हाँ, इसको डिवाइड करो, ये बाई ये करो, r sin phi, ये डिवाइडेड बाई ये r cos phi इक्वल टू इस तरह y by x, r कैंसिल, tan phi इक्वल टू व्हाट? y by what? x. सो दैट phi इज कॉल्ड, इसमें एक इनवर्स आ जाता है, तो ये क्लास 12 में होगा। तो फंक्शन को जब इस तरफ ले लो तो उसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अंडरस्टूड? मतलब यही जो मैंने दिखाया था ना फाई, यहाँ पे फाई दिखाया था ना, ये No, sir. Yes, sir. दैट फाई यू कैन से tan इनवर्स y by x. अंडरस्टूड? दिस इज y एंड दिस इज व्हाट? x. tan इज व्हाट? p by b होता है कि नहीं? Yes, Yes. sir. तो ही p by b में आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये मिलेगा अच्छे से फिर। सो ये फॉर्म तुम लोग को याद रखना होगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू इज रूट ओवर माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट? Root over a square plus b square. प्लस साइन इज देयर। ओके, ना एक क्वेश्चन लिखो, लिखो ये क्वेश्चन। बोल। सर लास्ट पार्ट वाला फिर से समझा दीजिए ना। कौन सा? ये पार्ट? हाँ सर। ये पार्ट ऊपर, यस सर। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, क्या मिला तुझे यहाँ पे? r इंटू साइन थीटा प्लस फाई ना, isn't it? यस सर। तो इसका अगर वैल्यू सबसे कम होगा तो ये सबसे कम होगा ना, यस सर। तो साइन का सबसे लिस्ट वैल्यू क्या है? -1। -1। तो -1 ये जब हो जाएगा, ये क्या होगा? -r होगा ना, -1 इंटू आर। यस सर। तो ये देखिए -r इस तरफ, इसका एकदम छोटा वैल्यू, एंड ये जब सबसे ग्रेटेस्ट होगा तब ये ग्रेटेस्ट होगा ना। यस सर। sin theta plus phi is what? Because your r radius is fixed. Theta plus phi क्या है? 1, हाईएस्ट वैल्यू 1 ना, यस सर। तो r इंटू 1 क्या है? r। बाकी सब उसके बीच में रहेगा ना। इसका वैल्यू देखो, sin theta plus phi is lies between -1 to +1। बाकी हाफ है, 1/√2 है, वो सब है, लेकिन वो सब इसके बीच में आ जाएगा। दैट इज नॉट मैक्सिमम, नॉट मिनिमम। मिनिमम है जब r से मल्टीप्लाई करोगे, ये r मल्टीप्लाई है, ये -r और +r। Am I clear? यस सर। देन r का ओरिजिनल वैल्यू क्या आया था? √² प्लस b स्क्वायर। तो अदर देन सारा वैल्यू उसके बीच में है। सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू एंड दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू।
क्वेश्चन है क्लिक, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ minimum and maximum value of 6 sin x cos x plus 4 cos 2x. तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लाना होगा, a sin x plus b cos x इस फॉर्म में लाना होगा, a sin x plus b cos x. Am I clear? yes आया sir, समझ में? देखो दिस इज 6 sin x cos x plus 4 cos 2x. इसको हम लोग थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 sin x cos x लिख सकता हूँ ना? yes sir, यहाँ पे cos 2x है, cos x, तो यहाँ पे sin 2x होना होगा, तभी जाके ये फॉर्म आएगा, क्योंकि एंगल सेम होना होगा. अंडरस्टूड? yes sir, सो 3 इंटू 2 sin x cos x क्या हो गया? sin 2x. sin twice x, 2x. ये फॉर्मूला sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, और ये क्या हो गया? 4 आ गया, फॉर्म में आ गया ना? देखो Yeah. yes sir, देखो a sin x प्लस b cos x, x मीन्स यहाँ 2x, तो उसका फॉर्म में डाल दो, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट ओवर a एंड b क्या है? 3 square plus 4. ये वैल्यू कितना होगा? 5 रूट 25, रूट 5. 25 5, so minus 5. So what is the least value? -5 Minus 5. And what is the highest value? plus plus 5. 5, आया समझ में? देख, और एक क्वेश्चन देता हूँ. Any doubt? देख, डाउट है? sir, हम्म, सर ये एक्सप्रेशन अगर एक फंक्शन है तो फिर ये -5 to +5 इस फंक्शन का रेंज स्टेट करता है. हाँ, यस यस, रेंज रेंज, ये एक फंक्शन हो गया ना, मतलब इस फंक्शन का रेंज -5 to +5 है, इसीलिए वो लीस्ट वैल्यू -5 एंड हाईएस्ट वैल्यू +5. Exactly, it is range. You can say it's the range of that function. Understood? सबको समझ में आया रे? देख, Yes, sir. Yes, sir. शाइना, Yes, sir. अच्छा एक मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे लेता हूँ, हाँ, उसमें लिंक देता हूँ, तुम लोग इसको
चैट बॉक्स में एक लिंक गया, देख तो मिला ना सबको? लिंक गया ना? Yes, sir. ओपन दैट लिंक एवरीवन। उसमें 2 क्वेश्चन है, देख तो। उसका अटेम्प्ट करके छोड़ दो। हाँ, सर हाँ। सर इसका ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने के बाद क्लास को लीव कर देना है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, कहाँ लीव करने बोला हूँ? सर नहीं छोड़ देने का बोल रहा सर इसलिए। नहीं नहीं, उसको ये कर दो, उसको सिर्फ तुम लोग सबमिट करके छोड़ दो, फिर यहाँ पे आ जाओ। ओके सर। सबमिट कर दो सिर्फ उसको। अभी मैं तुम लोग को हर क्लास में ऐसा 2 एक क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग करोगे। अभी इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो हुआ कि नहीं हो गया ना? सर नहीं हुआ है सर। कर जल्दी कर। टेन एक्स 10 वाई दिया है ना, एक्स प्लस वाई फाइन करने दिया पहला वाला, तो 10 एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो।
सर हो गया। हो गया? सबका हो गया? देख, यस सर। पुरुषा सब है? इस क्वेश्चन में आ जाओ। और सर हो गए सर। उसको सिर्फ सबमिट करके रख दो। शाइना क्या? सर कर रही हूँ। 1075 कैसे फाइंड करते हैं? तो कोड तो ऐसे ही निकल जाएगा, 10 का रेसिप्रोकल ना। (45 + 30). 45 + 30। हाँ, उसका याद ही रखना है। 1075 क्या था? √3 + 1 / √3 - 1 ना। 2 यस + सर। √3, 2 + √3। यस यस सर। सर। कर हो गया, बोल ही दिया। देख, नहीं अभी इसमें आ जा, जल्दी कर उसको। बाकी सबका हुआ रहे, सबको अटेम्प्ट करना है। यस सर सर हो गया। सबको अटेम्प्ट करना है। अजीजुर गोरिसा, चिरंजीव, और सर जुनैना। यस सर कोई भी। Now come to this question. Find the maximum and minimum value of this. So first of all, you see this angle is not same here. तो पहले इसको फॉर्मूला में वेक करो। मतलब इसका पैटर्न a sin b cos ऐसे में आना होगा। ये cos में है, वो साइन में आ जाएगा। देखो, cos x + y का फॉर्मूला बोलो। cos x cos y minus sin x sin y। cos x cos y minus sin x sin y। ओके, 5 cos theta plus 3 into cos pi/3 means cos 60। कितना? 2 ना। cos 60 is what? Half, 1/2। isn't it? 1/2। So half of cos theta sin 60 √3/2। √3/2। 3/2 sin theta। मल्टीप्लाई करो, 3/2 cos theta 3√3/2 sin theta। देख, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, यस सर। नाउ ये दोनों लाइक टर्म है। देखो, लाइक टर्म है ना। यस सर। तो cos थीटा कॉमन लेने से 5 + 3/2 हो जाएगा cos थीटा कॉमन, और यहाँ पे -3√3/2 sin थीटा। तो ये हो गया 13/2 ना। यस सर। isn't it? और इसको ऐसे लिख सकते हो +-3√3/2 sin थीटा। मतलब a sin थीटा + b cos थीटा फॉर्म में आ गया, isn't it?
व्हाट इज ए एंड बी? ये कितना है? साइन के साथ वाला है, ये पहले लिखो नहीं था। So -3√3/2 sin theta plus 13/2 cos theta. This is lies between minus √(a² + b². ये होल स्क्वायर करो 9 27/4 plus b² 169/4 ना, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. उस तरफ भी सेम, खाली प्लस होगा 27/4 प्लस 169/4। 4 एलसीएम लो, क्या होगा देखो तो 196, isn't it? Yes. What is the square root of 196? -14/2. -14/2, ये -7 हो जाएगा, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So what is the least value? -7 -7 and what is the highest value? plus plus 7. Very good. लिख दो। एक सिंपल दिया हो, देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ sin x into cos x। ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, ये मतलब a sin x plus b cos x, तो सिंपल एक फंक्शन है sin x cos x, तो उसको कैसे फाइंड करोगे? देखो sin x into cos x एक्चुअली हाफ ऑफ sin 2x होता है ना। What is sin 2x? 2 sin x cos x. 2 2 sin sin x x cos cos x. x. So what will be sin x cos x? Half of Half of sin 2 sin x. half of sin 2x. So sin x into cos x को क्या लिख सकता हो? हाफ ऑफ sin 2x लिख सकता हो? Yes. Yes, sir. तो अगर ये लिख सकता हूं तो देखो जब हाफ तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू यही रहेगा। जब sin 2x मैक्सिमम होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। Yes, sir. एंड sin 2x जब मिनिमम होगा तब इसका वैल्यू मिनिमम होगा। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 2x? -1. -1। साइन कुछ भी एंगल रहे, साइन का ग्राफ कभी भी -1 एंड +1 से ऊपर और नीचे नहीं जा पाएगा। ओके, Yes, sir. Yes. यहाँ पे मल्टीपल एंगल देने का मतलब क्या है? वो ग्राफ तो थोड़ा क्राउडेड Compress हो जाएगा. कॉम्प्रेस हो जाएगा। यस, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना कॉम्प्रेस होता रहेगा, एंड जितना हाफ मल्टीप्लाई करोगे 1/2 1/3 वो उतना रियर फेक हो जाएगा। अंडरस्टूड? स्प्रिंग जैसे खींचते हो ना, तो डेंसिटी कम हो गया, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो गया। अंडरस्टूड? बट ये जो लेवल है, हाईएस्ट लेवल एंड लोएस्ट लेवल, ये कभी भी उसका क्या नहीं होगा?
अफेक्टेड नहीं होगा। अंडरस्टूड? Yes, yes sir. sir. So therefore sin कुछ भी एंगल हो, the minimum value is -1 and maximum value is +1. तो जब ये -1 होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू -1/2 हो जाएगा ना। Yes sir. तो मिनिमम वैल्यू लिखो, लीस्ट वैल्यू इज, व्हाट इज लीस्ट वैल्यू? -1/2. -half. -1/2. Good. And what is greatest value? +half. Plus +half. ये सब जानना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? yes sir. नेक्स्ट देखो, बाकी सबको समझ में आया? क्या हुआ? Find the maximum value of cos square pi/3 minus x minus cos square pi/3 plus x. इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। बाकी सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. देख, ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करो। cos square x minus cos square y like that. तो दिस इज लाइक ये जब लिखते हैं हम लोग cos square x minus cos square y, ये क्या है? cos x होल स्क्वायर माइनस cos y होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। ये चीज Yes तो sir. देखो, you can write cos x होल स्क्वायर माइनस cos y होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या होगा? cos x माइनस cos y इंटू Cos x plus cos y. cos y। यहाँ पे भी सेम चीज होगा। देखो cos ऑफ pi/3 माइनस x माइनस cos ऑफ, ये हो गया cos x माइनस cos y एंड देन cos x प्लस cos y। तो दो फॉर्मूला होता है, एक तो cos c माइनस cos d भी बनता है यहाँ पे, या तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला cos x माइनस y मतलब cos a माइनस b, इसमें भी ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करो तो a माइनस b में cos x माइनस y में ब्रेक कर दो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे। शाइना समझ में आया? शाइना Yes, sir. ब्रेक करो उसको। देखो cos x माइनस y का फॉर्मूला क्या है? cos x cos y माइनस
साइन एक्स साइन वाई ना, या तो कॉस सी माइनस कॉस डी भी लिख सकते हो, तुम लोग का मर्जी है। देन माइनस लिख cos पाई बाई 3 cos x, देन ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 3 साइन एक्स। तो ये हो गया पहला टर्म। देन सेकेंड टर्म भी लिख cos पाई बाई 3 cos x प्लस साइन पाई बाई 3 साइन एक्स, देन प्लस cos पाई बाई 3 cos x माइनस साइन पाई बाई 3 साइन एक्स। देखो ये और ये कैंसिल होगा, बीच में प्लस है, ये माइनस है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस दो बार हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन पाई बाई 3 साइन एक्स, एंड इसमें भी क्या होगा, ये दो बार होगा, इंटू 2 cos पाई बाई 3 cos x। समझ में आया ना? देख यस सर। साइन पाई बाई 360 √3 बाई 2 √3/2 साइन एक्स इंटू 2 cos पाई बाई 3 हाफ, यस, यस इंटू सर। cos x, 2 Cos x। कैंसिल, ये 2 कैंसिल मत करना, एक काम कर, ये 2 साइन एक्स cos x एक साथ लिख, √3/2 2 साइन एक्स cos x, वो साइन 2x में आ जाएगा ना, isn't it? सो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके ये बन गया, जो फंक्शन दिया था, देखो, है ना? Any doubt? Any doubt? सर कोरिया सर। शाइना yes sir, समझा? yes sir, अभी देख, ये साइन 2x में आ गया, तो उसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने दिया ना, Yes, sir. यस सर। तो साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +1 +1. +1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? √3/2। √3/2. √3/2 लिख, आया समझ में? यस सर। सो कुछ सिंपल फंक्शन बन जाता है, जो फंक्शन आ गया उसका रेंज मालूम होने से तुम लोग को ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू आ जाएगा। एंड ये तो सिंपल त्रिकोण साइन में आ गया, और ये तो दिखाई दिया साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में क्या होता है। और अगर सिर्फ टेन में आया, कॉस में आया, तब तो सिर्फ उस फंक्शन का रेंज देख के ही तुमको मालूम हो जाएगा कि उसका हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू क्या होगा। कर लिया? यस सर। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये इफ cos alpha plus beta is equal to 4/5 and
साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, where alpha and beta lies between 0 and pi/4, where alpha and beta lies between 0 and pi/4, मतलब 0 and 45 के बीच में है, मतलब दोनों प्लस करने 0 और 90 के बीच में होगा, माइनस करने से भी 0 और 90 के बीच में ही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। एक बार तुम लोग सोचो सिर्फ कैसे आंसर आ सकता है। सम क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है। मतलब ये दोनों एक्यूट एंगल है। अंडरस्टूड? Yes. नाउ देखो, मैं एक सिंपल स्टेप दिखा देता हूँ पहले। सपोज मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, देखो कॉस, ये अल्फा प्लस बीटा, सपोज ये ABC। तो कॉस क्या होता है? B/H ना? हाँ, Yes, sir. कॉस इज व्हाट? तो B इज, ये एंगल लिया तो ये B और हाइपोटेन्यूस इज 5, तो ये क्या होगा? P क्या होगा? 3। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम ना? Isn't Yes, it? sir. देन इस ट्राइंगल के लिए सपोज यहाँ पे मैंने लिखा ये अल्फा माइनस बीटा, ये भी एक्यूट है, PQR। यहाँ पे साइन दिया है, साइन क्या होता है? P/H ना? Yes, sir. ये बेस होगा, P इज 5, हाइपोटेन्यूस 13, तो ये 12 होगा। Yes, sir. पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 12 एंड क्या होता है? 13 ना? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, या तो पाइथागोरस में डाल दो, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे cos अल्फा प्लस बीटा दिया है, tan अल्फा प्लस बीटा में फाइंड कर लेता हूँ। tan क्या होगा तब? P/B? Yes, sir. 3/5. Yes, sir. 3/4. 3/4। एंड यहाँ पे मैं tan अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर लेता हूँ। क्या होगा? 5/12. 5/12. 5/12, वेरी गुड। ये हम लोग निकाल लिया। अभी देखो, मुझे चाहिए tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan 2 अल्फा चाहिए ना? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा? 2 अल्फा ही रहेगा। Yes, sir. तो अभी यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, दिस इज लाइक x, दिस इज y, tan x प्लस y क्या होता है? tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x 10y। tan x tan y। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये सब वैल्यू तुम्हारे पास है, देखो ये सब बहुत क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। tan अल्फा प्लस बीटा कितना है? देखो 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा कितना मिला? 5/13।
1 माइनस 3/4 इंटू 5/13 एलसीएम लो ऊपर 52 इज एलसीएम सर 10 अल्फा माइनस बीटा 5/12 है 5/12 ना 12 48 is the LCM 12 is the LCM na 4 and 12 calcium 12 439 plus 5 isn't it यस सर नीचे भी कर 12 कैल्शियम होगा 4 and 12 का 12 minus 15 ना कितना आएगा देखते हो सर हम्म सर 10 टू अल्फा में जो सेकंड पार्ट आपने लिखा है उसका डिनोमिनेटर में 12/15/12 कैसे हुआ सर 15/48 होगा लाइसेंस 15 by this is multiply ना but ठीक कर सर अगर हम 3 और 12 को काटे तो फिर 5/16 आएगा 1 माइनस 5/16 बाद में काटना अभी कर 9 10 14/12 और ये हो जाएगा 48 बाई माइनस कर 3 33 ठीक है isn't it हो जाना 56 बाई 30 देखिए ये आंसर आएगा यस सर आई तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और क्या सिंप्लीफाई करेगा ओके सर डेसिमल यहाँ पे नहीं चाहिए ना ये देख अच्छा तुम लोग एएम जीएम अच्छा जीएम तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं मिला ना एएम एंड जीएम का रिलेशन नेक्स्ट क्लास में मैं बोलूंगा पहले हाँ बहुत सारा सामने हम लोग को एएम जीएम का रिलेशन से हम लोग आंसर निकलेंगे सो वो एएम जीएम चाहिए एएम तो मालूम है ना अरिथमेटिक मीन यस सर ऐसे बोलता है कि अगर ए एंड बी का अरिथमेटिक मीन क्या है तो इसका अरिथमेटिक मीन होगा ये दोनों प्लस करके डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 ना यस सर उसका बीच वाला को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन तो अगर अरिथमेटिक मीन हम लोग कैपिटल ए मान लेते तो ये कैपिटल ए होगा यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 कैसे आता है देखो ये एम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया तो a माइनस है इक्वल टू बी माइनस है कॉमन डिफरेंस है तो ये इस तरफ लेके आओ
A plus B. The arithmetic mean of two term is their average. None other than their what? Their average. Understood? Average. अगर Yes, तुम sir. लोग पूछता है व्हाट इज द AM of 2 and 4, 2 and 4 का AM क्या है? उसका AM होगा 2 plus 3. 4 divided by 2 equal to yes 3. GP मालूम है? GP क्या है? GP देखो, GP मतलब Geometric progression. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अगर मान लो ये एक सीरीज सीक्वेंस मैंने लिखा तो मतलब यहाँ पे माइनस करने से सेम नहीं होगा. देखो 3 minus 1 2, 9 minus 3 6, 27 minus 9 डिफरेंट हो गया. तो डिवाइड करके देखो 3 by 1, 9 minus 9 by 3, 27 by 9 सबने सेम होगा ना. Yes, sir. तो जब डिवाइड करने से सेम होता है तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जीपी. तो ये जो डिवाइड करके जो आया उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो. उसमें जैसे कॉमन डिफरेंस होता है एपी में डी होता है ना. Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंस यहाँ पे रेशियो होता है क्योंकि तुमने डिवाइड किया, रेशियो फाइंड किया, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो आर. Am I clear? Yes, sir. Yes. तो अगर मान लो तुमको बोला ये तीन टर्म जीपी में है, ये तीन टर्म जीपी में है, तो यू कैन राइट बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी. C by B. है ना? Yes, sir. Yes, बी sir. स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AC. तो बी इक्वल टू होगा रूट ओवर एसी. सो मतलब ये बी मिडिल वाला को बोलते हैं उसका जीएम. ए एन सी का जीएम क्या है? बी. बी मतलब क्या है? Plus minus Root root by- AC. रूट एसी. अगर मान लो तुमको ये दो वैल्यू दिया है 2 and 4, इसका बोला है कि जीएम निकालो, तो यू कैन राइट प्लस माइनस दे सकते हो सामने 2 into 4 रूट 8. रूट 8 क्या है? 2 root 3. Plus minus 2 root 2. 2 रूट 2. Am I clear? तो इसमें एक Okay. रिलेशन होता है एएम एंड जीएम का. वो रिलेशन में नेक्स्ट क्लास में डिराइव करूंगा. ठीक है? Okay, sir. किसी का क्लास है क्या अभी? सर केमिस्ट्री का है सर. ओके चलो तब अच्छा हो जाएगा. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. थैंक यू. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir.